ओके, सो लास्ट क्लास में हमने फैराडे लॉ को डिस्कस किया था, नहीं? सो व्हाट इज द फैराडे लॉ एंड व्हाट इज द लेंज लॉ, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द direction of induced current and induced EMF also, sort of. Yes, so today we will see the some application of that law. So what are the applications? So this is the one of the application, um, electric generator, electric generator, electric generator. Basically, electric generator, what electric generator convert mechanical energy into electrical energy. So we are going to discuss the principle of that electric generator, and the construction is not so much important from exam point of view. Only the working principle, as well as working principle is also not required, but principle, on which principle that electric generator is work, that we will see. Okay, so ये देख सकते हैं, लेट अस सपोज ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है जनरेटर का, बट कुछ ऐसा ही कंस्ट्रक्शन होता है कि आपका एक साइड में क्या लगा होगा, इधर इस तरफ आपका मैग्नेट लगा होता है, यूं करके मैग्नेट लगा होता है। एक्चुअली ये ऐसा कॉइल नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ऐसा है, ठीक है। और इधर एक मैग्नेट लगा हुआ है, मींस, और मैग्नेट जो है परमानेंट है, ये नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का, और ये साउथ पोल हो गया, जिसके जिसके वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो मैग्नेट का स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेट का स्ट्रेंथ होगा दैट इज कांस्टेंट। सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस मैग्नेट इज आल्सो कांस्टेंट, बिकॉज इट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in this direction, magnetic field will be in this direction, so magnetic field ka direction fix and the magnitude is also fixed. So we can see the magnetic field is constant, B is constant, in this case B we take constant. Now, and in this magnetic field we have a loop which does not carry any current. Remember, we have just a loop. Yes, so as you can see, this loop have some area, that is called surface area of this loop. This is the surface area of the loop, but when this loop is rotate into that magnetic field, the surface area will not change. So we say that A is also constant. A constant, or magnitude of A is constant? A constant कौन? Magnitude. Yes, that is constant, because you can see as this rotate, as will this loop will rotate, then what happen? The normal vector of this area, that will be change. So A will change, the direction of A change. So n cap is change. So due to which what happen? This is the phi. Phi के बदले यहाँ पे theta use करते हैं. So theta is the, we know that angle between B vector and n cap. That is also change. Because as this loop will rotate into this magnetic field, so डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, बट ये जो नॉर्मल वेक्टर है इस सरफेस एरिया का वो चेंज होगा, ठीक है, जिसके वजह से आपका ये जो एंगल है वो चेंज होगा। तो होता क्या है, जैसे ये आपका पूरा रोटेट करने लग गया, ये रोटेट करने लग जाएगा,
ये रोटेट करेगा जैसे ही आपका, तो इसके अंदर होगा क्या, जैसे अगर ए रोटेट करने लग गया तो होगा क्या, हमें पता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई बी, ये होता है आपका बी डॉट ए, विच इज इक्वल टू बी ए cos theta. So because theta change, then phi b is also change. Because this change, so we can say this is also change. Magnetic flux is change. But how theta is change? What is the relation between time and theta? If I'm saying that this coil is rotated with angular velocity omega, so what is the relation between theta and omega and time? Omega equal to theta by t. Yes, omega, angular speed. We know that angular speed is equal to, angular speed जो होगा omega, ये आपका होगा, that is angular velocity or angular speed of the coil which is rotated into the magnetic field, that is equal to theta, angular displacement by t. So you can see theta is equal to omega into t. So theta is depend upon time. So as time change, then theta is also change. So we can say magnetic flux phi b is equal to b into a, because b is constant, a is constant, cos omega t. So you can say magnetic flux is also function of time. This is change with time. This change with time. So we know that as magnetic flux through this coil, because this coil is rotate into magnetic field, so what happened, the magnetic flux through this coil will change. Magnetic flux through this coil will change with respect to the time, due to which what happened, according to the your what Faraday, we have a current, induced current into this loop. So if there is a current, so we here we can also क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं एक बैटरी और some kind of storage device. Okay, some kind of storage device जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे करंट जैसे ही आएगा, देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड डी, और ये फिर ये जो आपका डिवाइस है उस एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेगा, और जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज कर लेते हैं. ओके, सो नाउ what is the current induced into the coil? That is our task to calculate. So you know that EMF induced into the coil, this is the induced EMF, that is equal to minus rate of change of magnetic flux. This is what your Faraday law. Rate of change of magnetic flux, that is equal to induced EMF. तो यहां पे आ जाएगा epsilon d is equal to, if you differentiate this thing with respect to the time, what you get, d by dt into b into a into cos omega t. क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? b a omega minus sin omega t. यस, बी ए जो है आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया, और कॉस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो जाएगा साइन ओमेगा टी, और उसके बाद हम अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे, वी अप्लाई चेन रूल, सो वी गेट ओमेगा. तो यहां पे हमको मिलेगा क्या, ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस साइन ओमेगा टी होता है, सो माइनस हियर आल्सो, सो वी कैन से बी इंटू ए into omega sin omega t. So this is your induced EMF. Let us suppose, अगर ये तो मैंने यहाँ पे एक कॉइल दिखाया है, बट लेट अस सपोज यहाँ पे n नंबर ऑफ कॉइल्स होता, यानी बहुत सारे कॉइल्स होते, बहुत सारे कॉइल होते हैं यहाँ पे ऐसे करके, बहुत सारे कॉइल होते हैं. तो अगर एक ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला है हमने, वो थ्रू वन कॉइल निकाला है. अब बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो अगर मान लो अगर एक कॉइल है, तो एक कॉइल के थ्रू हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इतना चेंज हो रहा है, एक कॉइल के थ्रू.
बट अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ कॉइल्स होता, कैपिटल N नंबर ऑफ कॉइल्स होता, तो टोटल फ्लक्स कितना चेंज होता कॉइल के थ्रू? यहाँ पे हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द नंबर ऑफ कॉइल्स। क्यों ऐसा किया? बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल्स निकालना होगा, तो मैं हर एक कॉइल के थ्रू कितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहा है उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल मिल जाएगा। सो यू कैन अप्लाई हियर आल्सो n. So you have n here. So this is the induced EMF. Induced EMF means ये जब कॉइल रोटेट किया, ये A और B के बीच में जो EMF इंड्यूस्ड हुआ, वो कितना हुआ है? n इंटू, यू कैन से VA माइनस VB। अच्छा, इसमें हम बता सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ओके, 1 मिनट। क्या इसमें अभी आप बता सकते हो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होता रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा? चेंज होता रहेगा चेंज होता रहेगा। चेंज होगा, क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। हाँ, फ्लक्स टाइम के साथ, बट कैसे चेंज कर रहा है? इट इज अ फंक्शन ऑफ कोसाइन। मींस साइनसोइडल साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन है। तो वी नो दैट कॉस का फंक्शन जो है वो आपका टाइम के साथ कैसा होता है, समझते हैं हम इसको। तो ये फाई जो है कॉस के साथ चेंज कर रहा है, इसीलिए जो अब आप यहां देखो ईएमएफ भी जो है वो किसके साथ चेंज कर रहा है? साइन के साथ चेंज कर रहा है। मींस कभी इसकी वैल्यू प्लस होगी, कभी इसकी वैल्यू माइनस होगी, कभी इसकी वैल्यू प्लस होगी, कभी इसकी वैल्यू माइनस होगी। तो इसीलिए यहां पर जो करंट आएगा आपको, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज। मींस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? बार बार चेंज करेगा। अच्छा, करंट अगर मैं निकालूं तो कल बताया था इंड्यूस करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय आर। आर क्या है यहां पर? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। So this is equal to what? N into B into A into omega upon R into sin omega t. Means बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो करंट है, यू कैन सी, इसके अंदर जो करंट है वो एक्चुअली फंक्शन किसका है? साइन का। किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है ना? मींस ये जो करंट होगा, कभी, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहूं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2। बट वहीं पर अगर मैं कहूं साइन 360 डिग्री माइनस 60 कितना होता है? 320 डिग्री, 300 डिग्री, इसकी वैल्यू अगर पूछूं तो ये आ जाएगा -√3/2। इसका मतलब क्या होगा कि कभी साइन की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो जब ये पॉजिटिव होगा तब तो करंट पॉजिटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो करंट नेगेटिव हो गया। मींस करंट का वैल्यू जो है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके अंदर जो करंट का डायरेक्शन है, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज। So we produce what kind of current here? Alternating current. Alternating current. Alter अल्टर क्या स्पेलिंग क्या होती है? अल्टर क्या होती है? अल्टरनेट करंट। ओके, सो अल्टरनेटिंग करंट वी गेट AC। ओके, सो क्या हुआ इसमें? एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं? बेसिकली वी डोंट चेंज B। हम यहाँ पे B को चेंज, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे हैं, नहीं मैं ये जो लूप है उसके एरिया को चेंज कर रहा हूं। मैं सिर्फ क्या चेंज से कर रहा हूं? बी और ए के बीच में जो एंगल है उसको चेंज कर रहा हूं। तो यदि ये कॉइल रोटेट कर रहा है, मींस बी और ए के बीच में एंगल चेंज होगा, बी और ए के बीच में एंगल चेंज होगा, तो इसके अक्रॉस जो है हमें ईएमएफ मिल रहा है, वी गेट ईएमएफ।
but that EMF is changed with respect to the time. Is changed with respect to the time. It is not constant. It is not constant. You can see it is a function of time. It is not constant. Okay, just a minute. Alternating का मतलब क्या है? Just try to understand what is the meaning of alternate. Alternate. Alternate means what? Alternate means what? Is something, some value that will be repeat over the time. Some value is repeat over the time. Some value, कोई भी क्वांटिटी अल्टरनेटिंग कब कहलाता है? कोई भी क्वांटिटी अल्टरनेटिंग कब कहलाएगा? जब उसकी वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करेगी, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू टाइम के बाद रिपीट करेगी. सो दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग. ओके, जरूरी नहीं है कि ये साइन का फंक्शन हो, जरूरी नहीं है यहां पे मिल गया साइन और कोसाइन का, बट ये जरूरी नहीं है. अगर कुछ भी चीज, कोई भी फंक्शन, कोई भी क्वांटिटी अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर रिपीट कर रहा है, सो दैट इज व्हाट यू आर अल्टरनेटिंग. अल्टरनेटिंग लाइक अगर मैं यहां पे कहूं, अगर मैं करंट ऐसे करके भी कहता, तो दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग. दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग बिकॉज द वैल्यू दैट विल बी रिपीट एंड साइन विल चेंज ओवर द टाइम. कभी प्लस, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी माइनस, बट द रिपीट विल and the repetition is occur here. So that is what you are alternating. It is also alternating. Okay, जब AC start करेंगे then we will discuss this thing in detail. फिलहाल आप समझो कि अगर मैं सपोज EMF, ये जो हमको मिला, ये जो रिलेशन मिल रहा है, you can say induced EMF equal to N into B into A into omega into sin omega t आ रहा है. So what is the maximum value of induced EMF? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? NBA ओमेगा. हाँ, एन बी इंटू ए इंटू ओमेगा. कब हो रहा है? व्हेन, जब हाँ, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाए, है ना? या फिर आप ऐसा कह सकते हो, यस, या फिर ऐसा कह सकते हो साइन ओमेगा टी इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है वो चाहे तो +1 हो जाए या फिर -1 हो जाए, है ना? -1 हो जाए, +1 हो जाए या -1 हो जाए. अगर ये -1 होता तो जो EMF होता वो भी फिर से -N इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा होता. कोई प्रॉब्लम नहीं है. मींस ये मैक्सिमम वैल्यू है. अच्छा, जीरो कब होगा? जीरो कब होगा? जब आपका साइन ओमेगा टी 0 होगा. मींस if sin omega t is equal to 0, then you can say epsilon d is 0. epsilon d is 0 means कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ. sin omega t is 0 means कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा. मतलब क्या? ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए. अगर मैं ये कहता हूं 0 डिग्री होगा तो sin 0 is 0. ये क्या था आपका? थीटा. थीटा का मतलब क्या था? एंगल बिटवीन बी एंड ए, यानी बी और ए के बीच में, यानी मैग्नेटिक फील्ड. ध्यान से सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया है. अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए, तो क्या मिलेगा आपको? EMF 0 मिलेगा. EMF 0 मिलेगा. EMF 0 मिलेगा. EMF आपको 0 मिलेगा. बट अगर इनके बीच में एंगल, सोचिए, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 कब होता है? साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 कब होता है? ओमेगा टी अगर इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, मींस 90 डिग्री हो गया, देन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 1. मींस अगर बी और ए के बीच में एंगल, बी एंड ए के बीच में एंगल 90 डिग्री हुआ, तो करंट जो EMF हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम? नो सर. ओके, इसको ग्राफिकली तुम देखो, यहां पे समझो इस तरह से. ये देखो, ग्राफ अच्छा सा बना रखा है. ये ग्राफ क्या है कि अगर देखिए शुरुआत में t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर ओमेगा t इज थीटा. अगर t इक्वल टू 0 पुट करोगे देन ओमेगा t इक्वल टू क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. थीटा इक्वल टू 0 है. सो एट t इक्वल टू 0 यू कैन सी, ये जो है ओमेगा, ये है आपका EMF का. तो ये क्या आ रहा है? देखो, ये हो गया, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ,
मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, और ये आपका कॉइल है, ये आपका कॉइल है, ये आपका कॉइल है। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल का नॉर्मल है वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा उस टाइम पर कोई भी ईएमएफ आपको नहीं मिलेगा, जीरो। बट एज यू कैन सी टाइम इंक्रीज करेगा। इफ टाइम इज इंक्रीज देन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीज, थीटा इज ऑल्सो इंक्रीज, थीटा इंक्रीज करेगा। और थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपका जो साइन ओमेगा टी है वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब ईएमएफ जो है वो बढ़ेगा। तो देखो थीटा का वैल्यू जीरो था, जीरो से कुछ ज्यादा होता गया वैल्यू, है ना। जब यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर की तरफ बट नॉर्मल हो गया नीचे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री। जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, उस टाइम पर जो ईएमएफ मिल रहा है आपको मैक्सिमम मिल रहा है। ईएमएफ क्या मिल रहा है आपको, मैक्सिमम। और दैट इज इक्वल टू एन इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा। उसी तरह से जब फिर से देखिए, जब थीटा, जब नॉर्मल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है बट नॉर्मल इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे अगेन ईएमएफ इज जीरो। सो यू कैन सी द टाइम के साथ आपका ओमेगा पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, फिर उसके बाद ईएमएफ की वैल्यू फिर से जीरो हो जाती है। मींस रिपीट किया, वैल्यू पहले भी जीरो था, अब भी जीरो मिल रहा है, बट कुछ देर बाद मिल रहा है। वैल्यू रिपीट किया, वैल्यू रिपीट किया, अब क्या हो रहा है देखो, जैसे फिर से ये रोटेट करेगा, फिर से रोटेट करेगा, फिर से रोटेट करेगा, फिर से रोटेट करेगा, तो फिर से ईएमएफ घटेगा, और घटते घटते मैक्सिमम हो गया। मींस डायरेक्शन जो है ईएमएफ का चेंज हो जाएगा। जो पहले इसमें करंट था मान लो क्लॉकवाइज होगा तो फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और फिर से यहां पर ईएमएफ आपको मैक्सिमम मिलेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो पहले बारे में आपको मैक्सिमम कब मिल रहा था, जब ये प्लस हो रहा था, ये माइनस हो रहा था। इस जगह पर आपको क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बस इतना ही होगा। ईएमएफ यहां पर भी आपको मैक्सिमम मिलेगा। सो व्हाट दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंट, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट कि ईएमएफ जो है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पहला ये बता रहा है हमको कि एज टाइम चेंज ईएमएफ वैल्यू ऑफ जो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट विल बी चेंज, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। मैक्सिमम, और ये भी मैक्सिमम है बट अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मींस पहले एक बार ईएमएफ प्लस रहता है, मींस प्लस, उसके बाद फिर माइनस हो जाता है। मींस द वैल्यू इज एक्चुअली रिपीट, एक तो वैल्यू रिपीट कर रहा है ईएमएफ का, और दूसरा क्या कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सो इफ द समथिंग, सम क्वांटिटी जिसका वैल्यू रिपीट करे और उसका जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करे, कभी प्लस हो जाए कभी माइनस हो जाए, कभी प्लस हो जाए कभी माइनस हो जाए, तो उस टाइप के क्वांटिटीज को हम लोग ऑल्टरनेटिंग कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग। सो ईएमएफ इंड्यूस across this generator is actually alternating. So that's why we get alternating current, because EMF induced is also alternating, so we get alternating current. Correct? Yes, sir. Okay. Okay. अभी फिलहाल इतना हमें, जब मैं इसमें एसी में आऊंगा तो ये थोड़ा ध्यान से रखना है कि जो ईएमएफ है, यू कैन सी द करंट, जो मैक्सिमम करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल के अंदर, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एन, बी, ए, ओमेगा और आर के ऊपर। अच्छा, इससे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि एन मतलब आप जनरेटर बनाओगे, लेट सपोज यू मेक जनरेटर, तो जनरेटर बनाओगे तो उसमें नंबर ऑफ कॉइल को आप चेंज नहीं कर सकते। यू टेल मी, है ना, कि यदि आप कोई जनरेटर बना दिए, मान लो आपने जनरेटर बना दिया कि मुझे इससे बिजली बनाना है, तो एक बार जब बन गया तो क्या बार बार आप उसको क्या कहते हैं चेंज करते रहोगे नंबर ऑफ कॉइल्स को? यू कैन नॉट चेंज। एक बार बन गया असेंबली, एक बार आपने इसको लगा दिया मशीन को, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाएगा। अगर आपको चेंज ही करना है, आपको दूसरा जनरेटर लगाना, तो एक नया फिर से बनाना पड़ेगा। बट अगर आपके पास वो नहीं है पॉसिबिलिटी, तो आप क्या करोगे, एन की वैल्यू फिक्स रहेगी आपकी। जनरेटर जब बनता है तो उसमें एन की वैल्यू फिक्स
और उसके अंदर जो मैग्नेट लगा हुआ है वो भी फिक्स है, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स रहेगा, ये भी चेंज नहीं करेगा। ओके, और वायर है एक, मान लो मैंने यहां पर जो जनरेटर के अंदर वायर लगाया हुआ है वो आपका कॉपर का है, तो मैं वो उसको भी चेंज नहीं कर सकता। सो आर इज ऑल्सो फिक्स, एंड द सरफेस एरिया that is also fixed, but what I can change, what I can change, I can change ओमेगा। omega, I can change omega, means हमारे कंट्रोल में कौन है, ओमेगा, अंडर द कंट्रोल, कंट्रोल। इसको, इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। इसको अगर हम बहुत ज्यादा कर दें, मान लो मैं यहां पर ये कॉइल है, ये जो कॉइल है जनरेटर के अंदर जो कॉइल है, इसको बहुत हाई स्पीड से घुमाने लग गया, बहुत हाई स्पीड से घुमाने लग गया, तो क्या होगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो मुझे ईएमएफ मिल रहा है या करंट जो मिल रहा है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो एम्पलीट्यूड, इसको कहते हैं ये जो मैक्सिमम डेविएशन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डेविएशन और मैक्सिमम, यू सिंपल से मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, value from mean position. Now you can see the lectures, you get this thing, amplitude, amplitude. So the amplitude of the current is depend upon what, omega. You can, ये किसी एक पर्टिकुलर जनरेटर के लिए, किसी एक पर्टिकुलर जनरेटर के लिए जो जनरेटर बन गया है, उसके लिए हमारा क्या होगा, हम किस क्या चीज चेंज कर सकते हैं, ओनली वी कैन चेंज ओमेगा। अगर मान लो ओमेगा बहुत ज्यादा हुआ, लेट सपोज ओमेगा बहुत ज्यादा हुआ, तो क्या होगा, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। यस सर। हाँ, तो यानी हमें ओमेगा को कंट्रोल करना पड़ेगा कि कुछ रेंज तक ही हम क्या कर सकते हैं, इस कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी रख सकते हैं, इससे ज्यादा रखेंगे तो फिर करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा हो जाएगा सर्किट के अंदर करंट, आपको जो करंट यहां पे मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा। अच्छा, आपके घर में जो बिजली आती है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ electricity that is come into your home, what is the frequency, 50, yes, f equal to 50 hertz, 50 hertz। इसका रीजन है कि अगर 50 हर्ट्ज नहीं हुआ, मान लो अगर 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा इक्वल टू होता है एफ बाई 2 पाई, मीन्स आपका पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, ये जो रोटर, ये जो आपका, इससे एक्चुअली रोटर कहते हैं, ये जो एक्सेस दिख रहा है इसे, जिसके ऊपर इसको घुमाते हैं उसको हम लोग रोटर कहते हैं, इस रोटर की मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इतनी हो सकती है। सर ओमेगा तो 2 पाई एफ होता है ना। ओके ओके, जस्ट ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा इक्वल टू टू पाई एफ 2 पाई इंटू एफ, पक्का, ओके पक्का। हाँ, तो 2 पाई इंटू एफ, तो ये 2 पाई एफ, तो यानी एंगुलर स्पीड जो हो सकता है वो 2 पाई इंटू 50, मीन्स 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। मीन्स हम ये जो रोटर है जिसके ऊपर ये रोटेट कर रहा है कॉइल, उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं हम लोग, 100 पाई, इतनी स्पीड रखनी होती है। इससे ना हम ज्यादा कर सकते हैं ना इससे कम कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा या कम करेंगे स्पीड को, इस रोटर की स्पीड को अगर हम ज्यादा या कम करेंगे, तो क्या होगा, जो आपके घर में जो जो करंट आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड चेंज करेगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या करेगा, चेंज करेगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारे घर में जो करंट आए उसका एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स रहे, ठीक है। तो मीन्स हमें ओमेगा फिक्स रखना पड़ता है, ओमेगा फिक्स रखना पड़ता है, मीन्स बट ये फिक्स रहेगा नहीं, इसको कंट्रोल करना पड़ता है, इसको कंट्रोल करना पड़ता है, यानी जो रोटर स्पीड रोटेट कर रहा है उसकी स्पीड को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मिले। अब 50 हर्ट्ज होगा तभी हमारे घर में जो करंट आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लो 50 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, 60 हर्ट्ज हो गई, 60 हर्ट्ज हो गई, तो उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गया, ओमेगा ज्यादा हो जाएगा, और आपका जो सर्किट में आपको जो करंट मिलेगा वो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। तो जब आप अपने किसी मोबाइल को या किसी भी डिवाइस को या कोई बल्ब वगैरह को लगाओगे उसके साथ, तो क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। जैसे अमेरिका के अंदर जो बिजली पैदा होती है वो 60 हर्ट्ज के ऊपर होती है, 60 हर्ट्ज पे होती है। तो अगर मान लो कि कोई अमेरिका गया, वहां से
कुछ चीज, कोई बल्ब खरीद लिया और आकर के इंडिया में लगा रहा है, तो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। उसी तरह से अगर इंडिया का सामान ले करके वहां पे चलाते तो वहां काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि जो डिवाइस यहां पर जो डिवाइस बनाया जाता है, यहां पर जो डिवाइस बनाया जाता है वो किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ध्यान पे, कि हमारा जो बल्ब होना चाहिए वो 50 हर्ट्ज के ऊपर ही वर्क करना चाहिए। अभी जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए। जो हमारे घर में जो करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो हमारे पास जो भी डिवाइस है, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, या कुछ भी है, उसकी खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर वो वर्क करता है। अगर वो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तभी आपके पास वो प्रॉपर ढंग से, मींस यू गेट द मैक्सिमम थिंग्स, अदरवाइज यू डोंट गेट। तो कभी ऐसा नहीं होता कि हम यहां से कोई सामान लेके जाएं अमेरिका और अमेरिका में चलाने की कोशिश करें, नो, दैट इज नॉट वर्किंग। सो अपना अपना हर एक कंट्री का होता है कि हम जो है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करेंगे, हमारे डिवाइस कम करना चाहिए। सो दैट इज व्हाट ओमेगा, यू थिंक दैट ओमेगा इज actually we can change this omega. This is our under control. So this is one of the application of Faraday. It is used to actually produce the alternating current. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. कोई और डाउट है किसी को? No, sir. Okay. नो सर। Okay. Okay. तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया कि फाई चेंज कर रहा है। नाउ वी विल सी अगर थीटा चेंज कर रहा है, नाउ वी विल सी इफ एरिया चेंज देन व्हाट हैपन। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ क्या करें, फाई को चेंज कराएं। नाउ आई वांट टू चेंज द एरिया, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस, ये हो गया मेरा एक कंडक्टिंग ओपन लूप हो गया। ओके, और इसके ऊपर मैंने एक वायर रख दिया, ऐसे करके एक वायर रख दिया जो कि मूव कर सकता है, जो कि मूव कर सकता है। this can be move, this wire can be move, this can be move, can be move. Okay, now and I assume that जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। I assume that magnetic field is constant, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और ये अंदर की तरफ है। I assume here phi, that is मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है और कांस्टेंट है, ये पूरा है ऐसे। So B is constant, B is constant, B हमने आना है कांस्टेंट है। Now and मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एंड और जो आपका लूप का जो नॉर्मल होगा, लूप का नॉर्मल जो होगा, मैंने बताया था नॉर्मल उसी डायरेक्शन में लेना है। देखो यहाँ पे समझो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मींस फील्ड अंदर की तरफ है, सो यू टेक नॉर्मल इनसाइड। इस लूप का जो नॉर्मल होगा वो इनसाइड ही होगा। सो द थीटा यहां पर हो गया 0 डिग्री, दैट इज ऑल्सो फिक्स कांस्टेंट। नाउ what I do, I move this loop or this wire with some speed. Let's suppose speed v. So as you move this wire with the speed v, so what happen? What happen? The area change. You can see this is the initially you have this area, surface area, जिससे magnetic flux pass कर रहा है, closed surface. You have to consider closed loop. So this is a closed loop and this is a surface through which your magnetic field lines is pass. But as you move this with v speed, so what happened? Let's suppose आपने से v speed से move कराया और in small time t this loop will be here. Let's suppose this loop will be here, loop will be here, so loop will be here. So what happened? You can see the area, this much of area is increase, this much of area is increase. So area in this case is not a constant, area is not a constant, so a is not constant, magnitude of a is not constant, that is change.
तो क्या होगा अगर ये ऐसा हो गया तो? ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे बताओ एरिया अगर इंक्रीज करेगा, नाउ वी नो दैट फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, थीटा इज बिकम 0, so this is equal to b into a. So b constant, only a is change. So if a is change, a increase कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? अगर मैं इसको इस तरफ ले, हाँ इंक्रीज कर रहा है, यस एग्जैक्टली इंक्रीज कर रहा है. So this will be increase. So what happen? Magnetic flux increase or decrease? Increase. Increase. In which direction? In which direction? In which direction? In downward direction. अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इनसाइड, दिस विल इंक्रीज इनसाइड, अलोंग इनसाइड. सो सर ये स्केलर होता है ना, तो फिर इसमें डायरेक्शन क्यों देख रहे हैं? क्या चीज? मैग्नेटिक फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें हाँ, डायरेक्शन क्यों देख रहे हैं? नहीं मैं डायरेक्शन मतलब मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अमाउंट है, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स का दूसरा डेफिनेशन क्या था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस. सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज इन विच डायरेक्शन? इन विच डायरेक्शन? इन विच डायरेक्शन? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, in inward direction. That is the thing. So number of field lines that will increase inside the direction. So in which direction current should be induced according to the length? This is the cause. In opposite direction. हाँ, तो अब हमें इसमें करंट कैसे इंड्यूस कराना चाहिए? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, यस एग्जैक्टली. मींस हमारे पास इसमें जो करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज, मींस वी हैव इंड्यूस करंट in anti-clockwise direction, because जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो जो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है वो डाउनवर्ड. अगर मैं इसको राइट साइड में लेकर के जाऊंगा तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अंदर की तरफ इंक्रीज करेगा. तो हम यहां पर जो करंट करेंगे किस तरह से इंड्यूस करेंगे कि EMF जो इंक्रीज मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है वो उसको रिड्यूस कर सके. वो रिड्यूस कब होगा? जब हम करंट इसके अंदर इंड्यूस कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. बट इंस्टेंट ऑफ दिस, सपोज व्हाट आई डू, यहां पर अगर यही मेरा लूप होता और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ ही है, एज्यूम दैट इज यूनिफॉर्म B, and this is your movable wire. And suppose if I move in this direction, so what happen? The magnetic flux is increase or decrease? Decrease. Phi is decrease because A is decrease. अब किस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा? अंदर की डायरेक्शन में, मींस इस डायरेक्शन में आपका डिक्रीज करेगा. तो जब डिक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा तो होगा क्या करना चाहिए? करंट कैसे इंड्यूस होना चाहिए? क्लॉकवाइज, ताकि उसको बढ़ा सके. अंदर के डायरेक्शन में घट रहा है तो हम करंट इस लूप के अंदर इस तरह से इंड्यूस कराएंगे ताकि वो क्या कर सके, उसको बढ़ा सके, फ्लक्स को बढ़ा सके, मींस क्लॉकवाइज. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ID. तो एक तो तरीका है यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल लगाते हैं, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और ये वगैरह लगाते हैं. बट मेरे हिसाब से अगर उसमें पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. यूज योर लेंज लॉ. लेंज लॉ ये कहता है कि जो भी कॉज है उस कॉज को अपोज करने के लिए, जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो कॉज को अपोज करने के लिए होगा. तो अगर फ्लक्स अंदर की डायरेक्शन में घट रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, करंट इस तरह से इंड्यूस कराएंगे ताकि वो बढ़ाए, सो क्लॉकवाइज. और अगर बढ़ रहा है तो हम घटाने की कोशिश करेंगे. सो इफ यू यूज दिस कॉन्सेप्ट देन नेवर, कभी भी डायरेक्शन में गलती नहीं होगी, अदरवाइज मेनी टाइम डायरेक्शन में गलती होगी. ओके, नाउ my task is to find out how much this current is induced. So let us try to understand. Suppose this is the point, let's suppose A point, this is the point A, this point is A, let's suppose this point is A, this point is B. Okay,
दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। टेल मी कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा? ए ज्यादा हाई पोटेंशियल पे होगा या बी हाई पोटेंशियल पे होगा? ए वाला हाई पे होगा। ए वाला हाई पे होगा, ए वाला हाई पे होगा। क्यों? क्योंकि करंट देखो इसमें ऐसे करके है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हाई पोटेंशियल पे होगा तो करंट हाई टू लो आता है। एंड दिस वायर मूवेबल वायर बिकम योर बैटरी। जस्ट मैं थोड़ा बताता हूं। सपोज ये पॉइंट अभी मान लो आप ए और ये बी, एंड लेट अस सपोज किस ये यहां से जो डिस्टेंस है ये एक्स है, इस वायर का डिस्टेंस यहां से एक्स है, और ये जो है इसका लेंथ है एल। एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। सो अगर मैं फ्लक्स निकालूं इस टाइम टी पर, एट टाइम टी, एट टाइम टी, तो ये टाइम टी पर है, दिस इज एट टाइम टी। एट टाइम टी पर इस लूप का एरिया क्या होगा? एरिया जो हो जाएगा एक्स इंटू एल हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। दिस इज व्हाट योर मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t, at time t. But you can say this will move. So this flux is change because this x is also change. So what is the change rate of change of flux? D phi by dt. This is equal to b is constant, l is constant, so dx by dt. And now what is this dx by dt? Dx by Velocity. dt, that is your velocity of what? Your conducting wire. This is the velocity of conducting wire, this is the velocity of this wire. So we have b into l into v. So this is the velocity of conducting wire. So we have induced emf. This is a rate of change of magnetic flux. अगर मैं इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका? B इंटू एल इंटू वी आएगा। सो दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। बट ये ईएमएफ किसके अक्रॉस इंड्यूस होगा? किसके अक्रॉस इंड्यूस होगा? इस वायर जो मूव कर रहा है उसके अक्रॉस। मींस दिस वायर बिहेव लाइक अ व्हाट? बैटरी। बिहेव लाइक अ बैटरी मींस दिस इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज समथिंग लाइक दिस, कि ये आपका बैटरी बन जाएगा। So you have this point at high potential, this point at low potential. So the potential difference between A and B is equal to B into L into V. And now what if I am say that R is the R is, यहां पर अगर मैं कहूं, यहां पे मैं कहूं R जो है R, ये जो R है R is the रेजिस्टेंस। इसका नाम देता हूं मैं C, इसका नाम देता हूं D, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर A C D B, and small r is the resistance of what? Of A and B मींस इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? ए बी स्मॉल आर, और ये जो पूरा लूप दिख रहा है इसका रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर। सो व्हाट इज द करंट थ्रू दिस वायर? इंड्यूस करंट। EMF अपॉन में R प्लस R। हाँ, ये दोनों, ये जो वायर का रेजिस्टेंस है और इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा दोनों जुड़ जाएगा। ओके, बिकॉज दिस बिकम लाइक दिस, ऐसे करके हो जाएगा। ये आपका वायर हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया आपका बी, ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पॉइंट बी, और ये हो गया आपका लूप जिसका रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर। So the induced current into the loop
that is equal to EMF divided by total resistance R plus small r. So induced current you can say into the loop, that is epsilon upon epsilon is BV into L upon R plus small r. So again we get what? We get induced current or EMF, means we produce electricity, we produce electric current by changing what? By changing the surface area, by changing the surface area, by changing the surface area, by changing the surface area. Previously what we do? We actually rotate this loop. We are changing here phi and produce current. But what kind of nature of current produced here? Alternating. But here, what kind of nature of the current is produced? What kind of nature is produced? That is what? ये value, ये क्या रहेगा? That is constant. Constant. Constant रहेगा. That is constant. B is B, V, L, R. All are the constant. So that we get constant DC. Here DC. DC. बट अगर मान लो ये वायर है, इस वायर की स्पीड को मैं क्या करा था? टाइम के साथ चेंज करा था. मींस ये कॉन्स्ट, अभी तो मैंने मान लिया कि v स्पीड से मूव कर रहा है, बट अगर मान लो v स्पीड से नहीं मूव कर रहा होता, ये एक्सेलरेट कर रहा होता. ओके, सपोज दिस वायर, this is your homework, you think and tell me the answer. Suppose this wire is move with acceleration a. Okay, suppose acceleration a से move कर रहा होता, a से move कर रहा होता. So what is the current induced? That is actually change with respect to the time. That actually change with respect to the time, because speed is changing with respect to the time. Okay, this is your homework. Tell me when acceleration, when this rod have some acceleration. Initially it is at rest, and finally it have some acceleration. So what happened? The speed is not constant. So if this speed is not constant, then current produced inside this loop is also function of time. But tell me whether it is alternating or not. Current time के साथ change करेगा, but current alternating होगा कि नहीं होगा? होगा. Alternating कैसे होगा? Alternating होने के लिए क्या कंडीशन है? Alternating का मतलब क्या था कि वैल्यू रिपीट करना चाहिए टाइम के. यहां पर एंगल जब आप इसको रोटेट कर रहे थे, तो ये जो थीटा का वैल्यू था, फाई का जो वैल्यू था, वो रिपीट कर रहा था. मींस ऐसे करके रोटेट रिपीट कर रहा था, इसीलिए आपका जो यहाँ पे वैल्यू मिल रहा था वो भी रिपीटिंग मिल रहा था और इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा था. बट यहां पर अगर मैं सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इस लूप को मूव कराऊंगा, एक ही डायरेक्शन में मूव कराऊंगा, तो करंट भले टाइम के साथ चेंज करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, बट रिपीटिंग नहीं होगा, रिपीटिंग नहीं होगा. बट अगर मैं इसको क्या कराता, पहले कुछ देर आगे लेकर के जाता, फिर उसके बाद पीछे लेकर के आता, आगे पीछे, मींस इफ दिस प्रोड्यूस सिंपल हार्मोनिक मोशन, मींस अगर ये आपका क्या कर रहा होता, ऑक्सिलेट कर रहा होता. लेट सपोज दिस विल ऑक्सिलेट. इफ दिस इज ऑक्सिलेटिंग, अगर ये ऑक्सिलेट करेगा, देन वी हैव अल्टरनेटिंग करंट, देन वी हैव अल्टरनेटिंग करंट. ओके, देन वी हैव अल्टरनेटिंग. बट अगर ये लूप, देखिए सारा क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं, सारा क्वेश्चन है. अगर ये आपका ऑक्सिलेट करेगा, ठीक है, देन वी हैव अल्टरनेटिंग करंट इनटू दिस लूप. इफ इट ओनली मूव इन वन डायरेक्शन with acceleration, means velocity is change, then we have current which change with respect to the time, but that is not alternating, that is not alternating. और अगर ये constant speed से move करेगा, then we get DC. So you have to tell me the answer when, मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, आपको करना है when this will move. Let's suppose this wire, conducting wire, move with some acceleration a. So what is the induced current? Also, there is another question. If this wire is oscillating, suppose this will be oscillate. Okay, suppose I'm saying that is oscillate with a frequency f, omega, with the frequency omega. So what is the current induced into this loop? So in this two cases, you have to tell me the answer. So what is this? Okay, so that is what we produce alternating current. तो दो चीजें देखा यहां पर हमने, पहले थीटा को चेंज करा के देखा और
फिर हमने यहां पर क्या देखा, 5 को चेंज करा के देखा। ओके, नाउ एक और सिचुएशन लेते हैं। मैंने 2 सिचुएशन देख ली, अब एक सिचुएशन और लेते हैं। लेट्स सपोज यू हैव अ वायर, सपोज दिस इज योर वायर and this wire is infinitesimally long, okay, and that is carrying a current I, okay, and here we have a loop. Suppose we have a loop, a conducting loop. This is a loop, this is a loop, okay. So if now tell me कि अगर करंट चेंज करे, अगर अच्छा करंट की वजह से क्या होता है, इस कंडक्टिंग वायर के करंट की वजह से क्या होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ होगा, है ना। राइट हैंड स्क्रू रूल लगाना है, थंब को अपने करंट के डायरेक्शन में रख दो, करंट ऊपर की तरफ है तो उस डायरेक्शन में थंब रख दो, और अपने फिंगर्स को रोटेट कराओ। तो जो रोटेट कराओगे तो देखो राइट साइड में अंदर की तरफ जा रहा होगा थंब, और वहीं पर लेफ्ट साइड से बाहर की तरफ आ रहा होगा। सो इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। अच्छा, ओके ओके ओके, फाइन। So this is the, what is the magnetic field produced by a current carrying wire? B is equal to what, I can say B equal to what? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए। 4 pi or 2 pi? क्या होता है? 2 pi, 2 pi into आई बाय ए। x. Yes, x is the distance from the wire. Let's suppose this is the point, this is the point, these are the points, these are the points which is at a distance x from the wire. Now you can see B is depend upon I, B is depend upon I, B is depend upon I. So if B is change, how is this change? If I is change, if current through this wire is change, if current through this wire I is change, I is change, then what happen? B is also change. So if I'm saying that I is increase into this wire, I increase kar raha hai, I increase. So what happened? Magnetic field here, what is the magnetic field? Whatever the magnetic field, that is also increase. So if this is increase, this is increase, तो इसमें मतलब B कांस्टेंट नहीं है. So magnetic flux phi B is equal to what? B into area of this loop, okay, into में cos 0 degree. So B is increase, so phi is also increase, phi is also increase. So that what happened? EMF will induced inside this loop because current is changed. But how? With respect to the time. So again we produce the current. तो आपको कैलकुलेट करना है ये. This is your again homework. Okay, just try to solve. नहीं बताऊंगा नहीं, और पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है. ये सब करना है खुद से ट्राई. So let us suppose this is the A side of this loop is A, this is the B, और ये जो है आपका ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है यहां से कितने डिस्टेंस पे है? L डिस्टेंस पे है. So tell me in next class what is the EMF induced if current I is equal to 5t, means टाइम के साथ करंट जो है बढ़ रहा है. So what is the EMF induced inside this loop? EMF induced. And also you can say R is the resistance, R is the resistance of the loop. मैंने आपको आइडिया दे दिया, this is the idea, you can think like this way, huh? So R is the resistance, so what is the current induced? If you solve then I will explain, if you don't solve I will not explain. Okay, hello, आगे बढ़े. हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. yes,
तो ये तीनों केस देख सकते हैं। जब हम थीटा चेंज करा रहे थे, एक बार हमने क्या करवाया, ए चेंज कराया, और दूसरा हमने क्या कराया कि करंट चेंज कराया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराया। और मैं क्वेश्चन भेजूंगा तो उसमें देखना काफी चीजें चेंज होंगे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ और induced and induced electric field. Okay, so very simple, very simple thing. Let us try to understand. So suppose this is the magnetic field. Uniform means B is constant. अच्छा, यहां एक चीज मुझे बताना उससे पहले, ये जो मैग्नेटिक फील्ड वायर प्रोड्यूस कर रहा होगा, दैट इज यूनिफॉर्म स्टडी व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अनस्टडी, बिकॉज करंट के साथ चेंज कर रहा है। और दूसरा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। यू सी मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिपेंड अपॉन एक्स। एक्स ऐसे चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है हर एक पॉइंट पे आपको अलग अलग मिलेगा। सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म अनस्टडी मैग्नेटिक फील्ड। बट हियर आई एम कंसीडरिंग यूनिफॉर्म स्टडी magnetic field. So B is constant. This is the B is constant. B is constant. Now what I do, suppose we have a conductor. We have conductor whose length is, let's suppose L. L is the length of conductor. L is the length of conductor, and suppose this conductor move with speed V. Move with V. ओके, यहां पर कोई भी मैंने लूप वगैरह कुछ नहीं बनाया है, मैं सिंपल सा केस ले रहा हूं कि ये आपका कंडक्टर है, कोई कंडक्टिंग वायर कंडक्टर है, और ये V स्पीड से जो है इसके अंदर मूव कर रहा है। सो व्हाट हैपन, वी नो दैट, मैंने शायद ये पहले भी आपको शायद एक वीडियो भेजा है, उसमें था कि इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो वी नो वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो what happen, as this conductor will move, so along with this conductor, this electrons will also move into the magnetic field. Is it fine? Electrons is also moving with respect to the magnetic field, correct or not? Yes, sir. Yes. So if a charged particle move into a magnetic field, that experience what kind of force? Magnetic force. Tell me, in which direction magnetic force is acting here on this electron? Suppose this electron is moving in this direction. Yes. Downward. Pakka? Yes, sir. F equal to Q V cross B. So V is in this direction और B अंदर की तरफ हुआ, तो आ रहा है ऊपर के डायरेक्शन में थंब, बट चार्ज क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इन दिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग। सो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स व्हाट हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव हियर। सो इन सच अ मैनर, इन दिस कंडक्टर we have lot of free electrons, so all free electrons will move in this direction, downward direction. So जब एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स आकर के इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे, so what happen, इस इधर क्या आ जाएगा, बिकॉज नेट चार्ज जो है कंडक्टर पे 0 है, तो अगर सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ गए तो इसका मतलब इसके अपोजिट यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप हो जाएगा। और ये तब तक होगा जब तक कि स्टडी स्टेट ना आ जाए। What does mean steady state? स्टडी स्टेट का मतलब ये हो गया कि अब मतलब हम इसको मूव करा रहे थे तो इधर नेगेटिव चार्ज आकर के इकट्ठा हो रहा था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा था,
बट कुछ देर बाद यहां से कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा, मींस फिर चार्ज जो है इलेक्ट्रो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका मोशन रुक जाएगा। एट दैट टाइम इज कॉल्ड स्टडी स्टेट, मींस उसके बाद कोई भी आपका यहां पे चार्ज का मोशन नहीं होगा। तो ये कब होगा? तो जैसे आप देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, यहां पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए। सो व्हाट हैपन, दिस चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट? दिस चार्ज इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, this charge, positive charge and negative charge produce electric field. In which direction? Electric field किधर किधर upward or downward? Downward. Electric field in downward direction. अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन है ना फिर। फोर्स हो जाएगा ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होता है, बट फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो ऊपर की तरफ लगेगा। मींस इसके ऊपर आपका लगने लग गया इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ। सो जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो गया? 0। सो नो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, नो इलेक्ट्रॉन्स मूव। सो इसका मतलब कौन सा स्टेट आ गया? स्टडी स्टेट, मींस स्टडी स्टेट पे उसके बाद नहीं मूव करेगा। बट हुआ क्या अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो, हुआ ये कि कंडक्टर हमारे पास था ये वाला, इस कंडक्टर के इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गए सारे के सारे, और इस एंड पे नेगेटिव आ गया, जिसके वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। मींस हम ये कह सकते हैं कंडक्टर के मोशन की वजह से, अगर ये कंडक्टर मूव नहीं करता तो ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होता ही नहीं। ये जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अग लग रहा है, वो बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर। सो मोशन, इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के मोशन की वजह से अंदर में क्या प्रोड्यूस हुआ? अंदर में प्रोड्यूस हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर में प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ अंदर में, बिकॉज ऑफ दिस इज प्रोड्यूस, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड produced due to motion of कंडक्टर। रिमेंबर, कंडक्टर के अंदर ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और कोई नहीं। कंडक्टर इनसाइड द magnetic field. So in the magnetic field, when this conductor will move, so we have what? Electric field. And that electric field, this electric field को हम लोग कहते हैं induced electric field. This is called induced electric field. This is different from the electric field जो हमने पढ़ा था, ये उससे डिफरेंट है। Now tell me, अब मैं बताता हूं कैसे डिफरेंट है। फिलहाल समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। सो वी नो दैट अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। मींस अगर मैं ये एंड ए कहता हूं और ये पॉइंट बी कहता हूं, तो इसका मतलब जो एंड ए होगा कंडक्टर का, उसका पोटेंशियल वी ए होगा और इसका पोटेंशियल वी बी होगा। और मान लो इसका लेंथ एल है, कंडक्टर का, तो वी ए माइनस वी बी, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। सो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, यू कैन से E into L, करेक्ट है ना? ये रिलेशन था ना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। सो दिस इज E into L. Okay. Now, what is this electric force acting on this electrons? That is charge on electrons into में electric field E. Correct? Yes, sir. और magnetic force charge on the electrons is E. Speed इसकी V इधर की तरफ है और magnetic field अंदर की तरफ है, तो VB sin
90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों दिया? क्योंकि वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। सो यू कैन से E इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा V इंटू बी। और ये हमने पहले भी देख रखा है, और मैंने शायद वीडियो भेजा था जिसमें मैंने बताया था पीजो उसका, आई थिंक कौन सा वीडियो था, क्या बताया था मैंने ऐसा करके, तो बताया था मैंने, क्या बताया था, कौन सा इफेक्ट था, कोई इफेक्ट नाम था इसका, ये वाला मैंने करवाया है कि इसका कुछ नाम था, इस इफेक्ट का क्या नाम था? इसका नाम क्या था? सेंसर में यूज करते हैं इस प्रिंसिपल को। मुझे याद नहीं आ रहा, पर भेजा है, 10 मिनट का वीडियो था और मैंने ही बना रखा था, शायद देखा भी वो नहीं। देखा हाँ, तो क्या था वो, नहीं देखा? नहीं, शायद नहीं देखा। हाँ तो मत देखिए, एग्जाम के बाद वो शायद था कुछ VA माइनस VB इक्वल टू, मुझे याद नहीं आ रहा, फोटो कुछ था यार, क्या नाम था, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा। ओके ओके, VE इज इक्वल टू VB, क्या था, कुछ था VBL, पोलराइजेशन नहीं, पोलराइजेशन नहीं, कोई सा इफेक्ट कहते हैं उसको, जिसके वजह से, इफेक्ट का नाम था, क्या था, क्या है यार, सेंसर बनाते हैं उससे, डिस्प्लेसमेंट सेंसर बनता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल अलग चीज था, उसी से कुछ रिलेटेड था, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, कुछ वैसा ही होता था, जिससे हम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पता करते थे, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ओके चलो, मुझे याद नहीं आ रहा, देखते हैं। VA, so this is what, this potential difference is called, this potential difference between these two is called motional EMF. It's called motional EMF. Motional EMF. So motional EMF, you can say epsilon is equal to BV into L. So you again see we get same result here ना, यहाँ पर भी हमने यही देखा था कि as we move this conductor into this magnetic field, so we get a potential difference between these two and is BVL, or here also we get BV into L. But this electric field, yeah, हाँ, क्या चीज? वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर नहीं, मैंने 10-11 मिनट का वीडियो भेजा था, उसमें ना मैंने ये बताया था कि एन टाइप सेमी, अगर आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा या पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, तो आप उसको, उसका कुछ नाम है, मेरे मतलब अंदर आ रहा है बट बाहर नहीं आ रहा, हाँ, तो वो कुछ था जिससे हमें पता करना होता है, सपोज एन टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो हम उससे कर लेते हैं पता। और दूसरा, अगर मुझे एक सेंसर होता है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट सेंसर, मान लो आपने कोई, आपका फॉर एग्जांपल रॉड है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसका लेंथ चेंज हो गया, तो कितना लेंथ में चेंज आया, लेंथ चेंज तो आप निकाल सकते हो, बट कितना फोर्स लगाया जिसकी वजह से लेंथ में चेंज आया, तो वो निकालने के लिए उस सेंसर का यूज करते हैं। और काफी सारे पानी की टंकी वगैरह होती है तो उसमें यूज करते हैं उस सेंसर का, याद नहीं आ रहा, बट इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसी टाइप से प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल यही था। ओके ओके, बट दिस इज व्हाट, चलिए कोई बात नहीं, देखना, दिस इज व्हाट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा था वो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, कि चार्ज जब रेस्ट में होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है उसके वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता था, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसमें, चार्ज जब रेस्ट में है उसके वजह से हो रहा है, चार्ज के रेस्ट में होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है।
ओके, दिस इज द चार्ज इन रेस्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है था कंजर्वेटिव होता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंजर्वेटिव नेचर का होता था। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब कि वी डिफाइंड, वी कैन we can say the work done by the charged particle inside this field is independent from the path, or that never form a closed loop, that never form a closed loop. बट यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, यू कैन सी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज रेस्ट में था, बट यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ दिस चार्ज। इफ चार्ज मूव देन दिस फील्ड इज क्रिएट, दिस फील्ड इज क्रिएट, सो दैट इज योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज नॉट कंजर्वेटिव। उल्टी हो जाएगी सारी प्रॉपर्टी, उल्टा। This is not conservative, this is not conservative, this is not conservative, or that can form closed loop, that form closed loop, that form closed loop, that can form closed loop. So because of motion, induced electric field, what it is, the field, it is the induced electric field is what it is, the electric field produced by motion, motion of electrons, because of motion of electrons. And that is what non-conservative, non-conservative. Conservative means inside this field if you move any charged particle that depend upon path. And because non-conservative, because it is produced by what, that does not follow Coulomb's law, means this inverse law, inverse mf is not is inversely proportional to this. इसके वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इट इज नॉट लाइक दिस वे। ओके, कोई भी फोर्स अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, इसका मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बट अगर ऐसा नहीं है, तो ये हमने वर्क एनर्जी में पढ़ा था, अगर ऐसा नहीं है तो कंजर्वेटिव नहीं होगा। सो इसका मतलब ये जो फील्ड है हमारा नॉन कंजर्वेटिव, दैट कैन फॉर्म अ क्लोज लूप। सो हाउ इट कैन फॉर्म अ क्लोज लूप, आई मुझे देखते हैं इसको, हाउ इट्स फॉर्म अ क्लोज लूप। यस यस, वन सी सपोज दिस इज द, एक मिनट, ये देखिए क्या है कि आपका कोई भी मान लो ये मटेरियल है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, वायर को लपेट दिया है ऐसे करके। सो दिस इज व्हाट सोलेनॉइड, दिस इज व्हाट सोलेनॉइड। वी नो दैट सोलेनॉइड में क्या होता है, एक अंदर में कंडक्टर डाल देते हैं और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, वायर को लपेट दिया, ठीक है। सो दिस इज आवर सोलेनॉइड। सो एज current through this coil, you can see if current through this coil means current through this wire is changed, so अगर कांस्टेंट होगा तब भी क्या होता है, सोलेनॉइड का मेन पर्पस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है बट सोलेनॉइड के अंदर मिलता है, सोलेनॉइड के अंदर में मिलेगा, अंदर में मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, अंदर में, अंदर में, अंदर में मिलेगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सोलेनॉइड वाले केस में, B इक्वल टू म्यू नोड इनटू N इनटू I। N क्या होता है, व्हाट इज द N, what is Number the, of turn per unit length. yes, very good, so N by L, so N by L per unit length। तो अगर मैं कहता हूं करंट चेंज हुआ, करंट I is suppose change with the time, with the time, with the time, so what happened, this change, then magnetic field inside this solenoid is also change, the direction fixed, direction fixed, but what happened, the magnitude, because you can see the magnitude is depend upon current, so magnitude change, so B is change means अगर I बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनॉइड दैट विल इंक्रीज। तो इसी चीज को अगर तुम यहां से देखोगे, मतलब इस तरफ से देखोगे, तो आपको कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये हो गया सोलेनॉइड और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इधर की तरफ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और इसके बाहर में एक लूप लगा दिया, बाहर में लूप रख दिया है, बाहर में लूप रख दिया है, बाहर में एक कंडक्टिंग लूप रख दिया है, एक कंडक्टिंग लूप रख दिया है। यू कैन सी दिस इज द कंडक्टिंग लूप आउटसाइड दिस सोलेनॉइड। सो व्हाट हैपन, इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड चेंज मींस इसका वैल्यू जब बढ़ेगा, अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा टाइम के साथ, इसका वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगा,
तो फ्लक्स भी क्या होगा, इस एरिया से जो फ्लक्स है वो भी आपका चेंज होगा. वी नो दैट जब फ्लक्स किसी एरिया से चेंज करता है तो देन इट इंड्यूस करंट. सो फ्लक्स देखो, अगर मैं कह रहा हूं करंट इंक्रीज कर रहा है, सोलेनोइड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ेगा, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ेगा. तो करंट इसमें कैसे इंड्यूस होना चाहिए था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो करंट कैसे इंड्यूस होना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. इसका मतलब यहां पे करंट जो होना चाहिए था वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था. बट टेल मी, यहां पर इसने क्या दे रखा है, फिगर में दे रखा है उल्टा. इसका मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा होगा, घट रहा होगा. आ रहा बस में, मींस यहां पे करंट घट रहा है टाइम के साथ, इसीलिए करंट इसमें क्लॉकवाइज बता रहा है कि इसमें करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा. तो अगर आपको पता है कि ये एक चीज आपको पता है कि जैसे मैंने बोला था कि कोई एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर करंट सपोज आई है, आई इसके अंदर करंट है, तो इस कंडक्टर के अंदर करंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में. इसका मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, करंट के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में. करंट के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव कर रहा है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, है ना. ये यस सर. उल्टा बोल दिया मैंने, नहीं, सही है. करंट इधर की तरफ है, करंट इधर की तरफ है. ओके 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 ओके. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ. तो ये जो ये गड़बड़ है यहां पर, मींस ये हुआ करंट जो है इंक्रीज कर रहा है अंदर की तरफ, मींस करंट इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज करेगा तो करंट होगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपने बताया मुझे एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो इसमें अब करंट है, इसका मतलब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं इस वायर के अंदर जो बाहर में है, और वो तभी मूव कर पाएगा जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगे. सो वी हैव अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन सी दैट इज व्हाट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. और यू कैन सी इस पॉइंट के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है. सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड actually what happened, that form a closed loop, that form a closed loop, that form a closed loop. आ रहा बस में क्या हुआ, नहीं आया इसमें. ओके, एक बार और देखते हैं, समझो बात को. मैं यहां पे बताता हूं. ये मेरा हो गया लूप, ये मेरा हो गया लूप. इस लूप के अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस लूप के अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. करंट इसके अंदर है आपका एंटी क्लॉकवाइज. तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होगा वो किधर की तरह मूव कर रहा होगा, क्लॉकवाइज, उल्टे डायरेक्शन में. और जब ये मूव कर रहा है तो उसको मूव कराने के लिए कोई फोर्स लग रहा होगा. कौन फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज Q इंटू ई. ओके, एनी प्रॉब्लम. उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स ये वाला यहां पे आएगा तो इसके ऊपर फिर से फोर्स लगेगा Q इंटू ई. अगर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है इसका मतलब, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, फोर्स इसके ऊपर, सही तो है, फोर्स इसके ऊपर लगेगा इधर की तरफ, फोर्स लगेगा Q इंटू ई, ई इंटू ई, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर की तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में. सो इन दिस डायरेक्शन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फोर्स जो है इधर की तरफ लगेगा Q इंटू ई. सो यू कैन सी द इलेक्ट्रिक फील्ड inside this loop is also form a closed loop, and that's why it is a non-conservative in nature, but this is what induced current, correct. Yes, sir. Yes. So we cover this chapter. The last topic is what, eddy current, eddy current, eddy current, eddy current. So we will discuss this thing in next class, eddy current and induction. अभी तक हमने सिर्फ
डिस्कस किया है फैराडे लॉ। हमने अभी जो ये देखा, ये सब जो चीज मैंने बताया आपको, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉ। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी इंडक्शन, मींस इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन और एडी करंट। दिस टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो। सो ओके, इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? कल जो क्वेश्चंस भेजे थे आप में से सिर्फ एक ने किया है। हाँ